جی ناظرین کرام، وقفے سے آپ کے ساتھ چکا ہوں. ہمیں نوجوانوں نے جوائن کیا ہے جو کراچی کا مستقبل ہیں، جنہوں نے تعلیمی اعتبار سے کراچی میں نام روشن کیا، اور آج وہ نوجوانوں کو ٹپس دیں گے کہ نوجوان جو دل برداشتہ ہے، جو فوڈ پانڈا کر رہے ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود بھی، ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس جابز نہیں ہیں. محمد شاہ ہیں ہمارے درمیان موجود، ای کامرس اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم محمد شاہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں اسامہ بھی انہی اس بات سے انہی اسپیشلسٹ ہیں. آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے اور نوجوانوں کو آج آپ ٹپس دینے والے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا باغ پاکستان میں. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ہی موجود ہیں نمائندہ باغ پاکستان سینئر صحافی اور میرے بھائی ہیں عثمان بھائی. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ کیونکہ دو عثمان مجھے ملے ہوئے ہیں، ایک چودھری صاحب ہیں اور ایک ایوب عثمان. دیکھیں جی، عثمان تو میرا فخر ہے، میری پہچان ہے، میرے والد ہیں. اور ایوب آپ کا نام ہے؟ میں ایوب ہوں، انہی کی وجہ سے ہوں. ایوب تھا تو عثمان ملا، عثمان نے ایوب دیا. یہ بات ہے کہ باپ سے ہی، اور باپ سے ہی اولاد کی پہچان ہوتی ہے اور اولاد سے ہی باپ کی پہچان ہوتی ہے. میرا دوست، میرا سب کچھ میرا باپ ہی تھا. اس کے بعد میں بہت یہ سیریس ہو گیا ہوں. اچھی باتیں ایسے یہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے. کراچی نوجوان تحریک نے کل نارتھ کراچی میں ایک پرامن احتجاج کیا. فیضان بھائی سے ہم بات کریں گے، کچھ ہی دیر میں ان سے رابطہ ہوتا ہے، جیسے ہم بات کریں گے. محمد شاہ، آپ کی جانب آتا ہوں. ای کامرس کی بات اگر کی جائے تو کچھ نوجوانوں کو اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ نوجوان صرف ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہیں. انٹر کر لیا، میٹرک کر لیا، پڑھائی سے دور ہوتا جا رہا ہے کراچی کا نوجوان. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہاں تعلیم کو اونچے درجے پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن کراچی میں تعلیمی اعتبار کی بات کی جائے تو کالجز میں اساتذہ ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو خود کچھ نہیں آتا. وہ نوجوانوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ تو پہلے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے، پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی اور پنجاب کی آپ نے بات کی. کراچی میں ابھی جو کالجز اور ان کے حال تو آپ کو بھی پتہ ہے، اور جو ایجوکیشن کے اعتبار سے، اور ایجوکیشنز تو جو کالجز میں وہ ایسی ہے، لیکن کچھ کالجز اچھے ہیں جن میں ای کامرس کی تعلیم دی جاتی ہے اور ای کامرس کو پڑھایا جاتا ہے. وہاں پہ ساری چیزیں بتایا جاتا ہے کہ ای کامرس میں کیا ہوتا ہے، ای کامرس کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں ابھی ای کامرس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو ابھی کور نہیں ہوئی ہے. جیسے ابھی 22 کروڑ کی یا 24 کروڑ کی آبادی ہے پورے پاکستان کی، اس کو روز ضروری اشیاء تو ضروری ہر گھر میں چاہیے ہوتی ہے. اچھا، انٹرنیشنل لیول پہ اور پاکستان میں کیا فرق ہے ای کامرس کا؟ دیکھیں، پاکستان ابھی ڈیولپمنٹ فیز پہ ہے ای کامرس، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل آلریڈی کام کر رہا ہے. پاکستان کے اندر ابھی بھی کوئی بھی گھریلو کوئی بھی آرڈر کرتا نہیں ہے. جیسے آن لائن پہ کوئی بھی آرڈر پلیس نہیں، کوئی خریداری نہیں کرتا. انٹرنیشنل پہ لوگ ہر چیز خرید رہے ہیں. مطلب گھر کی ایوری تھنگ، مطلب ایشیا کی ضروریات، گھر کے ہر سامان سب انٹرنیشنل پہ خریدا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں لوگ ابھی بھی دکانوں پہ، شاپ پہ اور بڑے بڑے اسٹورز پہ جا کے ہی خریدتے ہیں. لیکن پاکستان میں ابھی تک آن لائن پہ جا کے کوئی زیادہ خریدتا نہیں، بہت کم لوگ ہیں. مطلب ابھی بھی ہمارے پاس اگر دیکھیں تو میرے حساب سے 90% ابھی بھی مارکیٹ کیپچر ہو سکتی ہے آن لائن پہ، جو نہیں ہے. ابھی صرف 10% 12% مارکیٹ پہ کام چل رہا ہے آن لائن پہ. یہ بھی کووڈ کے بعد سے آن لائن کی رجحان بڑھا ہے اور آن لائن پہ لوگ زیادہ بائی کر رہے ہیں. پہلے بالکل بھی بائی نہیں ہوتا تھا. اب الحمدللہ اب تھوڑا سا مارکیٹ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کو اور بھی ہم مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں، اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں. نوجوان خاص طور پر نوجوان یہاں پہ آئیں، ای کامرس کو سٹارٹ کریں. ہر ایک بندہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتا ہے، بہت اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکتا ہے. ای کامرس چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا بندہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ پاکستان میں ای کامرس کا رجحان بڑھانے کے لیے ہم نوجوانوں کو مارکیٹ میں آنا پڑے گا اور پورا ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ ای کامرس ہی آگے کا فیوچر ہے پاکستان کا بھی اور ہمارا بھی. ای کامرس جو کرتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتائے گا کہ اگر وہ ای کامرس کر لیتے ہیں، وہ ایکسپیرینس اپنا حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے کون سی کمپنی سوٹ کرتی ہے؟ ان کو جاب کیسے ملتی ہے؟ کون سی کمپنی ان کو اپروچ کرتی ہے؟ یا ان کے لیے کوئی ایسی خاص کمپنیاں ہیں جہاں وہ جاب کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں، ای کامرس کا کام تو سب سے پہلے سیکھنے کے بعد میری تو سجیشن یہ ہوتی ہے ان نوجوانوں کو کہ وہ اپنا کام سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، جاب سے اچھی ہے کہ وہ اپنا کام کریں. اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ اپنا پیج بنائیں، کوئی نہ کوئی پروڈکٹ لیں. آپ کے پاس پروڈکٹس تو کراچی ہب ہے پروڈکٹوں کا،
यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट लें, आप अपना पेज बनाएं और अपनी प्रोडक्ट डालें और नॉर्मली बूस्ट करें और उनको आप आपको अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दिखाएं और वहाँ से आप ऑर्डर पकड़ें। ये बिल्कुल स्टार्टअप है जो नौजवान घर में बैठ के इजीली कमा सकता है। बहुत अच्छी बात। मैं आपकी जानिब आऊँगा भाई, क्योंकि आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आप क्या नौजवानों के लिए सोच रखते हैं? अच्छा, इस वक्त एक अलमिया चल रहा है, पूरे दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन चल रहा है, एक इनकलाब चल रहा है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हम जो हैं रोजाना का 1 घंटा हमारा इंटरनेट बंद होता है तो $1 मिलियन का नुकसान हो रहा होता है। कल पाकिस्तान जो है रैंकिंग आई 200 ममालिक में जहाँ इंटरनेट है, पाकिस्तान 198 नंबर पे है। अच्छा। तो हमें तो पहले तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है कि इंटरनेट हो। अच्छा, दूसरी जानिब जाए, मेरा ताल्लुक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री से है। मैं 2019 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के अंदर प्रीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जहां पर इंसानों की जरूरत होती थी उसको रिप्लेस करने के लिए एआई आ रहा है। एआई जो है वो जॉब्स जाएंगी भाई, जा रही हैं। आप ये देखें कि इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 जनरेशन, अगर बेबी बूमर से हम जनरेशन अल्फा की बात करें, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2013 से, वो एक ही जॉब मार्केट के अंदर 8 बिलियन की पॉपुलेशन एआई टेक्नोलॉजी की वजह से आपस में कम्पीट कर रही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। नई जनरेशन आती थी, पुरानी जनरेशन रिटायर होती थी, लेकिन ये टूल जो हैं वो इनेबल करते हैं। 3 दिन पहले गूगल जो है हम सबके मोबाइलों के अंदर है, उसने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जेमिनाई। हर किसी के मोबाइल में आ रहा है, नहीं देखा आपने, अपना मोबाइल निकालें, आपके मोबाइल में जेमिनाई आ रहा होगा। अब जेमिनाई की बात यह है, क्योंकि मैं एआई से इंडस्ट्री से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ, तो मैं जेमिनाई को ऐसे ही खाने की मेज़ पे बैठा हुआ था वालदा और बच्चों के साथ, और मैंने इस्तेमाल कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। उन्होंने पूछा क्या है, मैंने बताया। अगले दिन सुबह आवाज़ आती है, मेरी वालदा, मेरे बच्चे उस एआई से जो है बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैं ज्वाइन कर लिया है कराची नौजवान तहरीक के रूह रवा फैजान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई कैसे मिजाज है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान भाई, कराची का नौजवान, कराची की सोच रखने वाला नौजवान, कराची की आवाम के लिए कल नॉर्थ कराची में आपने पुरअमन एहतजाज किया। उस एहतजाज का क्या हासिल हुआ, कुछ नाज़रीन को बताएंगे? अली भाई, टाइम लगता है चीजों में। हमने कल पुरअमन एहतजाज किया, उसके अंदर अपनी बात जो है जाहिर सी बात है रिकॉर्ड करवाई और अपना मुतलका इदारों में अपनी बात जो है पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन आपको भी पता है 100 साल का राम है, एक दिन में मुसलमान नहीं होगा। लेकिन आपको कुछ असर तो मिला होगा, कुछ कॉल्स आई होंगी। क्या मुज़ाकरात तय पाए आपके जो आपने कल अली भाई, कॉल कौन करेगा? मुझसे अक्सर आपके यहाँ से यही पूछा जाता है कि कॉल आ गई होगी, मुज़ाकरात हो गए होंगे, मिल लिए होंगे। होता है ना, अलमिया है ना फैजान भाई, जब कोई हक की बात करता है तो ये सब होता है ना, ये फेस करना पड़ता है। जब भी मुझे आपसे पूछना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ कोई भी अच्छा काम करता है या तो उसको थ्रेड आती है, या उसे मार दिया जाता है, या उसे दबा दिया जाता है, या उसे जेलों में डाल दिया जाता है। मैं एक बात बताता हूँ, आजकल है ना सोशल मीडिया का दौर है। मेरे फेसबुक के ऊपर भी थ्रेड्स मौजूद हैं, टिकटॉक के ऊपर भी मौजूद हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आएगी। जाहिर सी बात है उसके ऊपर पर्दा डाला जाएगा, क्योंकि सामने दोस्ती निभाने वाला ताल्लुक है ना। मसला ये है कि मैं फिर वही कहूंगा कि मुझसे बात करने के लिए मुंह भी चाहिए होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ऐसा मुंह भी तो लेकर आए। जब मैंने तहरीक स्टार्ट की थी तब मैंने स्टार्टअप में ही ये बात कह दी थी कि मेरिट के ऊपर बात करेंगे, मेरिट के ऊपर जो कत्ल आम हो रहा है उसके ऊपर हम आवाज उठाएंगे, चाहे वो अकाउंट्स हो या जिस हवाले से भी हो। तो प्रेशर में किसी के भी नहीं आएंगे, इसलिए किसी ने की नहीं। और दूसरी बात ये अली भाई, देखे लोग भी समझ रहे हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, सब हमारा जो इतना भी हमने आज तक अभी तक जितने भी हमने स्टेप उठाए, कोई एक स्टेप हमारा जाती मफाद के लिए नहीं, पब्लिक के लिए। हम अगर स्कूल, कॉलेजेस और डिस्पेंसरीज की बात कर रहे हैं वो भी पब्लिक की है, हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं वो भी पब्लिक का है, हम हैवी व्हीकल की बात कर रहे हैं वो भी पब्लिक का है। तो हमारा जाती मफादात किसी के अंदर है थोड़ी, हम तो पब्लिकली बात कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, इतना पुरअमन एहतजाज और इतना कामयाब एहतजाज। अली भाई आप यकीन करें, मैंने इस वजह से ज्यादा क्राउड नहीं जमा किया, मैंने सिर्फ अपने सुरजानी की अभी ये ज्यादा क्राउड नहीं था, आपकी नजर में ये क्राउड ज्यादा नहीं था? नहीं, ये तो हमारी 2 यूसीज थी। अगर मैं आवाज देता, मसला पता है क्या, देखें हमने वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि मैं ये समझता हूँ कराची में ऐसा एहतजाज और किसी ने नहीं किया होगा कि ट्रैफिक रवा था, जबकि हम सिर्फ
पुलिस मतलब जाहिर सी बात है कंसल्ट एसएचओ ने पूछा कि आप रोड कौन सा ब्लॉक करेंगे, हमें बताएं ताकि हम डाइवर्शन दें। मैंने कहा भाई हम कोई रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात, हम अपनी आवाम के लिए निकले और आवाम को परेशान करें, ये कौन सा एहतजाज है। हमने पूरा मन एहतजाज किया, रोड हमारे चल रहे थे, एक अच्छा मैसेज कन्वे किया हमने। अयूब उस्मान भाई हमारे दरमियान मौजूद है। अयूब भाई क्या कहेंगे फैजान भाई की इस काविश को? देखिए, मैं सबसे पहले तो नौजवान का आदत है और एक नेकी का जज्बा है इनमें, लेकिन मेरी एक जिंदगी गुजर गई कि इस मुल्क में बिल्ली जो है वो चूहे सवाब के लिए नहीं मारती। एनजीओज की हम बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं, हम वेलफेयर की बात करते हैं, हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एआई की। मुझे ये बताएं कि मुफ्त इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में कौम के लिए बात करते हैं और जाती फायदा ले लिया जाता है। मुझे ये बताएं, क्या के इलेक्ट्रिक बिजली पूरी हो गई कराची को? हर सियासी पार्टी, हर एनजीओ ने के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, फिर खत्म कर दिया। उसके बाद उनके लीडर्स अंदर जाते हैं मुज़ाकरात करने। उस बंद कमरे में क्या हुआ? बाहर आते हैं, लीडरान की गाड़ी चेंज हो जाती है, भांजे भतीजे के इलेक्ट्रिक में भर्ती हो जाते हैं, सियासी जमात के पॉलिटिकल कारकुन भर्ती हो जाते हैं, एहतजाज खत्म हो जाता है। वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज होता है, ऐसे क्या पानी पूरा हो गया? मतलब मैंने इधर जो जमातें इक्तदार में हैं उन्हें भी एहतजाज करते देखा है, लेकिन क्या मैं बहैसियत एक आम इंसान वो सब कुछ पूरा हुआ? फैजान भाई बड़ा अच्छा सवाल है अयूब उस्मान भाई का, इसका जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं। या कुछ हो, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो सिंध असेंबली के रुकन असेंबली, पार्लिमानी लीडर्स, ये सारे जो रोडों पे निकल के एहतजाज कर रहे होते, जबकि एहतजाज का हक आवाम का है, पब्लिक का है, एक सिंगल बंदे का भी है, ठीक है ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी होता था कि एहतजाज क्या होता था कि एक बंदा मस्जिद के बाहर बैठ जाता था, उससे पूछा जाता था कि हुआ क्या, वो कहता था कि मेरे साथ ये मसला है, मेरा घर का खर्चा पहले 7 दिनार था, अब नहीं हो रहा, उसका 10 करे मेरा। तो ये एहतजाज उस वक्त से चलता आ रहा है, चीजें मैनेज उस वक्त से होती भी आ रही है। एहतजाज करना पब्लिक का काम है, ये सिर्फ गुमराही की हुई है। मैं भाई की बात से इससे बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो जो बेजमीर हमारे हुक्मरान है ना, जिनको हम बार बार लाते हैं ये सारी चीजें होने के बाद, ये सारा किया धरा उनका है जो आप और मैं भुगत रहे हैं। दूसरी बात ये, इससे बेहतर तो के इलेक्ट्रिक जो गवर्नमेंट थी जब ये तभी सही थी, इसको प्राइवेट कर दिया अपने जाती मफादात के लिए। आज जो है गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, ठीक है, और अमीर आदमी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई अपने घर का बिल जो है वो खुद अपनी जेब से भरता होगा। फैजान भाई अभी आपने बात की कि बेज़मीर, आपकी नज़र में नौजवान तहरीक की नज़र में कोई बाज़मीर है कि जिसका वोट बैंक भी अच्छा हो, जिसकी मुआशरे में इज्जत भी हो, जो हुक्मरानी कर सके? आपकी नज़र में अब के वक्त में 2024 में कोई ऐसा चेहरा नजर आता है आपको? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कोई ऐसी शख्सियत जो करप्शन खत्म कर दे, जो पाकिस्तान को चेंज कर दे, जो कराची के हालात को बेहतर कर दे, जो कराची की रोशनियां थम गई हैं उन रोशनियों को दोबारा उजागर कर दे, शरई कानून नाफिज कर दें, हमारा एक अमीरुल मोमिनीन उसको मुंतखब कर दें तो शायद कुछ चेंजिंग हो जाए। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले, 400-500 साल हो गए हमारे कोई अमीरुल मोमिनीन ही नहीं, हमारा कोई खलीफा ही नहीं है। फैजान भाई मैं अयूब उस्मान, इसमें अमीरुल मोमिनीन में भी हमारे तो खत्म हो चुका नहीं, हमारे मुल्क में तो उसमें भी हो जाएगा कि ये अमीरुल मोमिनीन जो है वो देवबंदी नहीं हो सकता, तो बनेगा ही नहीं, मतलब हम बनेगा ही नहीं, क्योंकि तफरका इतना ज्यादा है ना। अल्लाह ताला, मैंने आपको क्या कहा, शरई कानून नाफिज की जाए। जब हम अल्लाह और उसके रसूल के अगेंस्ट जाते हैं तौबा तौबा नाउज़ु बिल्लाह, तो हमारी मौत तो आनी है ना हमारी। आप अंदाजा ये लगा लें कि आपने कभी किसी एक खिलाफत की अगर बात की जाए, मौलाना को देखा कि किसी एक चीज पे इत्तेफाक कर रहा हो, बिल्कुल तो हर कोई मेंबर पे बैठ के गलत बातें कर रहा था एक दूसरे के खिलाफ। क्या अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ने कुरान में फरमाया? अल्लाह ताला तो कुरान में कह रहा है, सबसे पहली सूरह फातिहा, उसमें कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं पूरी आलम का रब हूँ। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह की हैं और मैं पूरी आलम का रब हूँ। तभी उसने कहा, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नबूवत का ऐलान करो, तो आप निकले तो आपने क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कहा मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। इस बात के ऊपर आज तक किसी ने इम्प्लीमेंट किया चला नहीं ना।
फैजान भाई बड़ी अच्छी आपने बात की, आपने मेरा मौजू चेंज कर दिया। अगर हम इंसानियत की बात करें तो अभी हम शादी हॉल की बात, क्योंकि मेरे पास लास्ट 6 मिनट है, मुझे मेहमानों की जाने में हाँ, शादी हॉल। अब आप अली भाई मजे की बात सुने, क्योंकि आप बात करते हैं ना, नौजवानों की बात करते हैं ना, तो शादी हॉल के ऊपर जो टैक्सेस का मामला नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए आपकी तरफ से? अरे अली भाई मैं बताऊं क्या, कल हम इसी बात को मौजू में रहा, कल हमने एंकर्स को भी काफी ये बातें हमने बताई। मैंने देखो अभी नई एसओपीज आएंगी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, सही है। शादी जो है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जिससे आबादी बढ़ रही है, और जिससे आबादी कम हो रही है उसके लिए आप वही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बहुत अच्छा सवाल है ये। 10% टैक्स, अच्छा शादी के ऊपर टैक्स लगा दिया, देखो बताओ। अव्वल तो मैं एक बात बताऊं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि शरी कानून क्या है, बारात का तस्वुर नहीं है, जहेज का तस्वुर नहीं है, वलीमे का नहीं है। आप ये सारी शोदागिरियों के अंदर लगे पड़े हुए हैं कि 5-5 हजार लोगों का, 500 लोगों का मजमा जमा करके खाने खिला रहे हैं, सारे कर रहे हैं। ओ भाई, इतना ज्यादा अगर फालतू अल्लाह ताला ने पैसा दे दिया है तो किसी गरीब की मदद कर दो। अपने गरीब मुसलमान भाई तुम्हारा भूखा मर रहा है, पेट भरे भाइयों को, दो मेहमानों को गर्दन ऊंची करने के चक्कर में 15-15, 20-20 डिशें तुम कर रहे हो यार, ये कौन सा इस्लाम है? अच्छा, मार तो पड़ेगी ना अली भाई। अच्छा फैजान भाई, मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। अभी आपने बताया कि शादी हॉलों पे टैक्स लग गया, मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में बच्चे की पैदाइश पे भी टैक्स लगेगा। अगर बेटा होगा तो इतना टैक्स लगना चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में लगेगा, बाहर मुल्कों में फैजान भाई बाहर मुल्कों में नस्ल बढ़ाने के, इस्लाम में शादी का जो तस्वुर है वो सिर्फ एक है कि अफजाइश नस्ल बढ़े, मुसलमान। चाइना की पाकिस्तान में क्या होगा, इन बच्चे पैदा होने पे टैक्स लगा देंगे, जो 1971 से बहबूदे आबादी का महकमा बना दिया इस मुल्क ने। मफादात में जो हमारे लिए बेहतर होगा ना, हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। 400 रुपये सऊदी अरब में भी टैक्स है, लेकिन उसकी आप एजुकेशन देख लें, सारी जो फैसिलिटेट देख लें आप कितना करती है सऊदी अरब। 400 रुपये टैक्स ले रही है वहां पे भी एक बच्चे की पैदाइश के ऊपर, लेकिन उसको फैसिलिटेट उतना करते हैं, उसको वो माहौल, उसको वो एटमॉस्फेयर, पढ़ाई, दीनी तालीम, हर चीज फ्री भी देने को तैयार है। वैसा इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात वो चाहिए। अब ये टैक्स लगा देंगे इसके ऊपर, बच्चे की पैदाइश पे भी लगाएंगे। भाई आप उनके लिए कर क्या रहे हैं? निहायत ही अफसोस के साथ आपको पता है, परसों जो डंपर के नीचे दो आए, उसमें एक बच्चा जो छोटा है, तकरीबन 13-14 साल का बच्चा था, उसको हम लोगों ने जैक लगा के निकाला है, ठीक है। उसको यहाँ से लेके गए हम अब्बासी हॉस्पिटल। अब्बासी हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो वो छीपा के स्ट्रक्चर पे लेटा हुआ था, उसके लिए बेड तक नहीं था, ठीक है। वहीं पर ही खड़े खड़े हमने जोर दे के उसको ड्रिप लगवाने की कोशिश की, तो वहां से हमें भेज दिया गया कि आप इसको ले जाएं, हमारे पास नहीं, इसको सिविल ले जाएं। हमने फैमिली से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि भाई हम आपका प्राइवेट इलाज कराते, उसने बोला नहीं। गैरतमंद हैं लोग, उनकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, वो दीनी लोग थे बड़े, उन्होंने कहा नहीं यार, बस आप एक काम कर दें कि हमें सिविल हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीट करवा दें। वहां गए, इस दौरान 20 से 25 मिनट का रास्ता तो होगा, जो ट्रैफिक के हालात हैं। आपने एक बंदे को ना स्टिचेस लगाया, ना उसकी ड्रेसिंग की, ना कुछ, जैसे वो आया उसी हालत में उठा के बोल दिया हमारे पास तो बेड भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये है पाकिस्तान। फैजान भाई बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और नौजवान तहरीक काम कर रहे हैं, हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे दरमियान मौजूद थे। मैं इससे कबल के इख्तिताम की जानिब जाऊँ, आखिर में कुछ आपकी जो बात थी वहीं से इंटरप्ट किया था, मैं वो चाहूँगा वहीं से कंटिन्यू कीजिए। बस उसमें अब टाइम इतना रह गया कि एडवाइस ही दे सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल बात कीजिए। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त दुनिया भर में जो एक इनकलाब बर्पा कर रहा है, उससे पाकिस्तानियों को अवेयर जो है वो रहना बड़ा ज़रूरी है। तो आप जेमिनाई की एक एप्लीकेशन है जो मैं बता रहा था, जहाँ से बात खत्म हुई थी, उसको इंस्टॉल करें और उससे बातें करें। आपको जो भी सीखना है, आप इस प्रोग्राम के बाद जितने भी देख रहे हैं वो ट्राई जरूर करें कि आपको जो भी सीखना है आप उससे सवाल करें, उर्दू के अंदर वो जवाब दें। सीख के क्या हासिल किया ये बताइए। आप नौजवानों को मशवरा दे रहे हैं, नौजवान चाहते हैं ना कि उनको अच्छी सोच मिले, अच्छा मशवरा मिले, तो आपने इस चीज़ का इंतखाब क्यों किया और आपने इससे हासिल क्या किया? 2020 में मैंने पाकिस्तान का पहला प्राइवेट एआई रिसर्च सेंटर न्यूरोस्फीयर के नाम से मैंने ओपन किया था, और आज हमारी जो दुनिया भर में उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो हम दे रहे हैं। और आगे अभी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए भी हम रियल्टर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक हमारा बड़ा सरप्राइज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकील हमने एक पूरा बनाया हुआ है, जिसकी हम रोनमाई इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में ही करने वाले हैं।
اور وہ آپ کے قانونی مسائل جو ہے انٹریکٹیو طریقے سے کہ اسکرین پہ لگا ہوا ہوگا, بندہ سامنے کھڑا ہوا, آپ پوچھیں گے, وہ یہ بہت اچھی بات ہے. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ بس اس ٹیکنالوجیکل ریولیوشن میں جو ہے آپ اپنے آپ کو اوپر رکھیں, ورنہ پاکستان سروائیول کے قابل بھی نہیں ہے. یہ بھائی آپ کوئی میسج دینا چاہیں نوجوانوں کو؟ میں 2 منٹ آپ کے لوں گا کیونکہ ٹائم صرف ہے ہی 2 منٹ, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے سب کچھ ہے, بس یہی کہوں گا کہ مسلمانوں, پاکستانیوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ سواری نے اپنے سامان کی حفاظت خود کرنی ہے. کیا بات. تو آپ ایک دوسرے, وہ جو ہمیں پیدا کیا گیا ہے ایک دوسرے کے لیے, لیکن مجھے نہیں لگتا, اب میں کہتا ہوں آرٹیفیشل دور ہو گیا, آپ اپنے لیے ہی زندہ رہ لیں, اپنے لیے ہی کچھ کر لیں, باقی کچھ رہنے دیں. شاہ صاحب آپ کچھ میسج دینا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ ای کامرس سیکھیں, آگے بڑھیں, امیزون سیکھیں, شاپیفائی سیکھیں. پاکستان کے اندر ای کامرس کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے آگے, اور اس کو ڈیولپمنٹ کریں اپنے اندر, اور ای کامرس اپنا بزنس کھڑا کریں اور آگے بڑھیں اور کچھ کمائیں اور پاکستان کے لیے بھی اچھا کریں. ایک سوال اس کے بعد اجازت. ناظرین, جو مہمان ناظرین ہیں, ان کے لیے میموری میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میموری میں ای چناس کے اگیا ودو, کم کرو, گھروں ان میں پوٹینشیل بھی آئے, ہر چیز آئے پاکے, ہر آپ کو کیا فائدہ ہوا وہ بتائیں نا. میں کے ہی وہ تو کبھی بتائیں گے. میموری میں پیسہ کمائیں گے, پیسہ بتا رہے ہیں ترتیب وہی رہتا ہے جسے پیسہ کمانا ہو, جس سے الحمدللہ اصلا پورے پاکستان میں بھی کم کروں تھا, پورے ورلڈ میں بھی کم کروں تھا, یو ایس میں بھی کم کروں تھا, انٹرنیشنل سعودیہ, دبئی, ہر جگہ تے کم کری. یعنی فائدہ ہے ان فائدے میں اتنا فائدہ ہے گنجی کر دینا. کیا بات ہے بھائی, اتنا فائدہ ہے کہ کتنوں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اچھی بھی ہو, جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں, لیکن جو نوجوانوں کے لیے جو سوچ, جو فکر رکھ کے یہ لوگ آئے تھے, انہوں نے ایک اچھا میسج دیا. نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے. ناظرین کرام, اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے, میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.